Hello students, so beta today we are going to attempt the new problem from our topic that is going on as string handling. Okay class, and now children we are moving to the next category of our problem in which children we have to extract the words from a given sentences. Children, we have learned that how we can extract the individual characters from a word. Okay, but now children we have to learn that how can we extract the words from a sentence. Okay, for example, in a sentence, suppose there are 4 or 5 words, so then suppose we have to extract those words. So children, we are having number of logic for them. Okay, but I am going to teach you one easy logic. Okay, and if you want you can follow this logic. Okay, and when you will reach to the senior classes, we are having few more logics which you are going to learn in class 11th and 12th. Okay, so now children, first go through the problem, see that what the problem says, that write a program to input a sentence and print all the words along with their length at separate line. Okay children, means suppose what is the example given, if the input is I love my India. Okay children, and full stop also, because children what is told, write a program to input a sentence. And children, you have to keep in your mind that whenever in a program it is told that write a program to input a sentence, means children, a sentence can contain number of words and it should end with any symbol. For example, full stop, or we can have the question mark also. These kind of symbols may be there, but for class 10th we will assume that all the sentences are ending with full stop. Okay, in the simple problem children, we will make use the symbol full stop to terminate a sentence. Okay, and now children, after that you can look at the output. So what is told in the problem ki we have to print all the words in separate lines. So that I love my India, this word is having 4 words, so these 4 words should be printed at separate line. At the first line, love at the second line, my at the third line, and India at the fourth line. And children, along with all these words you have to print their length as well. Okay, for example, the first word is I and the length of the word is 1. In the same way, love contains 4 character, my is of 2 character, and India is having 5 alphabets. Okay children, so we have to print the number of characters also in those words. Okay, so now children, if it is the first program, so you have to be very careful. Okay, and see that how the program is going to work. So that children, the name of the class is given as words, after that public static void main, scanner is defined. Then in the next line children, see what is told, enter a sentence. So suppose that if you enter a sentence like this in the variable str, children, I am going to input I love my India. Okay, so I inputted the sentence here in this way. After that children, we can see that what is the length of the sentence. Okay, I will mark the index of all the character in this sentence. For example, that 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. So children, that the length of the sentence is 16 character. The first character is I at 0 and the last character is at index number 15. Okay class, so fit is the format of our sentence. Okay, after that children, we move to the next line. See that what is told, string word equal to null. So children, one variable is taken as word here. Okay, char ch integer x. So okay children, actually what are we going to do, we will extract all the characters from the sentence and we will keep adding them into the variable wd. WD stand for word. Okay children, and that where a word ends. Okay, that the word end at the blank spaces or any other symbol. For example children, in this sentence we can see I love my India. So that the blank spaces are at index number 1, means the first word I ends here. After that the next blank space is at index number 6. Okay, so that here the second word ends, that is love. And then index number 9, here the word my ends, and at index number 15 children we are having the full stop, means here the last word end. Okay children, so that
all the words they are ended with a blank space or full stop. Okay children, so we have to keep this thing in our mind. Okay, now children, now see that how the problem is going to work. Okay, so children, we are executing a loop from 0 to less than str dot length. Mean children, the loop will work from 0 to less than 16. Means 0 to 14 we will execute a loop, and after that come inside the loop. In the first line, see what is told: ch equal to str dot caret x. Means children, we are going to extract a character from index number x. So you know that the first time the x value of x is 0. So children, you know that it will extract the I from the sentence. Okay, and this I. Okay, now see that what are we going to do? Children, this condition is very important. Now look at the condition of if. What it says? If ch is not equal to blank space. Children, within the double quote there is a blank space. Remember this. And ch is not equal to full stop. Okay children, so we are checking the character we extracted. You know that the ch is having the value capital I for the time being, है ना? ch में भी क्या स्टोर है? कैपिटल I. So we will find whether if this character is a blank or full stop or not. ओके कि बेटा जो कैरेक्टर है ch, अगर ये ब्लैंक स्पेस नहीं है एंड द ch इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप भी नहीं है, एंड इफ बोथ द कंडीशन इज ट्रू, तो अब आप पहले चेक करिए. Capital I is not equal to blank, the first condition is true. ch is also not equal to full stop, so the second condition is also true. यानी कि बेटा ये ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो वर्ड को एंड कर रहा है, यानी ये किसी वर्ड का पार्ट है, वर्ड का ही कैरेक्टर है. सो देन द कंट्रोल विल कम इनसाइड द इफ, और ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी. WD इक्वल टू WD प्लस CH. तो बेटा ये जो कैपिटल आई आपने निकाला था ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? WD में जाके स्टोर हो जाएगा. ठीक है, जो हमने यहाँ पे वर्ड के लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था, और आपका कंट्रोल एल्स में मूव नहीं करेगा. क्यों नहीं मूव करेगा एल्स में? क्योंकि ये वाला पार्ट, इफ वाला पार्ट आपका ट्रू हो चुका है और ये चल चुका है. ठीक है, इसके बाद बेटा फिर ये लूप यहाँ से ऊपर मूव कर जाएगा x प्लस प्लस. नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 1. और अब ध्यान से देखिएगा, ch इक्वल टू str डॉट कैरेट 1. तो बेटा अब ch में क्या स्टोर हो जाएगा? कैरेट 1 पे क्या स्टोर है? ब्लैंक स्पेस है ना? कैरेट 1 पे ब्लैंक है. तो नाउ वी कम इनसाइड द इफ कंडीशन. नाउ सी दैट व्हाट इट सेज, इफ ch इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, रॉन्ग. अब तो आपको पता है कि ch में क्या आ चुका है? ब्लैंक स्पेस आ गया है. एंड चिल्ड्रन यू नो कि दैट वेन एवर वी एनकाउंटर अ ब्लैंक स्पेस इन अ सेंटेंस, व्हाट इट मीन्स कि द प्रीवियस वर्ड एंड्स हियर एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट इंडेक्स. ओके चिल्ड्रन, तो जैसे ही हमको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मिला, तो हमको मालूम पड़ गया कि यानी कोई वर्ड यहाँ पे एंड हुआ है. तो चिल्ड्रन व्हाट इट मीन्स कि जो पहला वर्ड है आपका कैपिटल आई जिसमें स्टोर हुआ था, ये वर्ड आपका कंप्लीट हो गया है. तो बेटा फिर से आइए कंडीशन में, हमने क्या चेक किया? इफ ch इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, रॉन्ग. आपको पता है कि पहली कंडीशन रॉन्ग हो गई है. तो आपको पता है कि बेटा बीच में यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है. बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, बट आपकी जब फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हो गई है तो आपको पता है कि कंट्रोल कहाँ मूव कर जाएगा? एल्स पे. ओके, सो चिल्ड्रन नाउ द कंट्रोल विल शिफ्ट टू द एल्स एंड सी दैट व्हाट आर वी डूइंग देयर. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वर्ड प्लस टैब. ओके, तो चिल्ड्रन पहले आपका वर्ड प्रिंट हो जाएगा. तो कौन सा वर्ड प्रिंट हो जाएगा? कैपिटल आई. देखिए अभी क्या वैल्यू है वर्ड की? आई है. इसके बाद फिर टैब. टैब यानी कि क्या होगा? बीच में एक ब्लैंक स्पेसेस आएंगे, और फिर हमने क्या प्रिंट कर दिया? वर्ड डॉट लेंथ. तो बेटा ये जो वर्ड है इस समय आपका क्या है? कैपिटल आई, और कैपिटल आई की जो लेंथ है वो कितनी है? 1. तो ये देखिए बेटा आपके आउटपुट की जो फर्स्ट लाइन है दैट विल बी गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. आफ्टर दैट चिल्ड्रन जब ये चल गई ये लाइन, इसके बाद अगली लाइन पढ़िए क्या लिखी है? वर्ड इक्वल टू नल, यानी वर्ड को फिर से ब्लैंक कर दीजिए. तो ये देखिए बेटा वर्ड की जो वैल्यू थी ना कैपिटल आई, ये आपकी रिमूव हो जाएगी और वर्ड आपका फिर से क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा. ठीक है ना? इसके बाद बेटा फिर आपका लूप ऊपर जाएगा. x प्लस प्लस. नाउ द वैल्यू ऑफ x विल टर्न टू 2, है ना? ch इक्वल टू str डॉट कैरेट 2. अब ch में क्या निकालिए? कैरेट 2 निकालिए. तो 2 पे क्या निकल के आएगा बेटा? लव का l निकल के आ जाएगा. ठीक है,
अब क्या आ गया, एल आ गया। नाउ चेक द कंडीशन ऑफ इफ सी एच इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ट्रू। बेटा पहली कंडीशन ट्रू है, सी एच ब्लैंक स्पेस नहीं है, एंड सी एच इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप। तो आपको पता है कि एल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप। तो बेटा एल ना तो ब्लैंक है ना फुल स्टॉप है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इफ में वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच। तो ये देखिए वर्ड में क्या ऐड हो जाएगा, एल ऐड हो जाएगा। ये वही वर्ड है जो आपने पिछली बार ब्लैंक कर दिया था। फिर इसके बाद कंट्रोल एल्स में जाएगा नहीं, लूप ऊपर मूव कर जाएगा, एक्स प्लस प्लस। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स विल टर्न टू 3, सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 3। तो देखिए 3 पे क्या है बेटा, आपके पास ओ है, तो ये आपका ओ आ गया। फिर चेक करिए, इफ ओ इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड ओ इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, सो वर्ड प्लस सी एच। तो बेटा ये जो आपने ओ निकाला था इसको भी वर्ड में ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद the control will not move to the else part, control will move up x plus plus, now the value of x will turn to 4, ठीक है। 4 पे क्या आएगा बेटा, सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 4 वी आ जाएगा, ठीक है। और जो v को फिर चेक करिए, इफ सी एच इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यस, सी एच इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, यस। तो ना v ना तो ब्लैंक है ना फुल स्टॉप है, तो वर्ड प्लस सी एच, तो v को भी वर्ड में ऐड कर दिया। तो देखिए बेटा वर्ड में अब तक तीन अल्फ़ाबेट ऐड हो चुके हैं, एल ओ वी। इसके बाद फिर कंट्रोल विल गो अप एक्स प्लस प्लस, नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स विल बिकम 5, सो यू विल गेट ई इन द सी एच नाउ, ओके। सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 5, तो ई आ जाएगा। अब जब ई आ गया, अब ई को फिर से चेक करिए, ई इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड ई इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, तो वर्ड प्लस सी एच। तो अब बेटा वर्ड में ई ऐड हो गया। इसके बाद बेटा फिर क्या करेंगे, फिर आप ऊपर जाओगे, x प्लस प्लस, नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 6। नाउ चिल्ड्रन नाउ सी अगेन, सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 6। तो आपको पता है ना अब क्या आएगा सी एच में, देखिए 6 पे क्या है, ब्लैंक स्पेस, ठीक है। जैसे ही आप अपनी कंडीशन चेक करोगे कि इफ सी एच इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, रॉन्ग, द कंडीशन विल गेट रॉन्ग, एंड यू नो दैट व्हेन द कंडीशन इज रॉन्ग, कंट्रोल विल शिफ्ट टू द एल्स पार्ट। तो बेटा आपने देखा क्या किया मैंने, एक एक करके अल्फ़ाबेट फेच किए, एल फेच किया, वर्ड में ऐड कर दिया, ओ को फेच किया, वर्ड में ऐड कर दिया, वी को फेच किया, ऐड कर दिया, और फिर लास्ट में ई को फेच किया सेंटेंस से और वर्ड में ऐड कर दिया। पर ई के बाद जब आप इंडेक्स नंबर 6 पे मूव करोगे, तो देन यू विल फाइंड अ ब्लैंक स्पेस देयर, एंड व्हेन द सी एच इज इक्वल टू ब्लैंक, सो यू नो दैट द कंडीशन विल बी रॉन्ग एंड कंट्रोल विल मूव टू द एल्स। तो बेटा ब्लैंक मिलने का क्या मतलब है कि नाउ द वर्ड इज फिनिश्ड, यानी कि ये वर्ड आपका तैयार हो गया है, एल ओ वी ई, लव, ये वर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल कहाँ पे आ चुका है आपका, अब एल्स पे आ गया है, मीन्स कि द वर्ड इज रेडी एंड नाउ यू हैव टू प्रिंट द वर्ड। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डब्ल्यू डी, तो डब्ल्यू डी को प्रिंट कर दीजिए। तो कौन सा वर्ड है अगला आपका, लव, तो ये वर्ड प्रिंट हो जाएगा। देन टैब, ब्लैंक स्पेस आएंगी, और फिर वर्ड डॉट लेंथ, तो बेटा लव की लेंथ कितनी है, 4, ठीक है। तो ऐसे बेटा आपका ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कहा आपने, वर्ड इक्वल टू नल, तो ये देखिए ये सारी वैल्यू फिर से रिमूव हो गई। पता है ना बेटा हमने वर्ड की वैल्यू क्यों कर दी नल, बिकॉज नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। आई एंड लव दो वर्ड प्रिंट हो चुके हैं, एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर द थर्ड वर्ड दैट इज माई, है ना। तो देखिए बेटा वर्ड फिर से आपका यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है। इसके बाद आपको पता है आई की वैल्यू अभी 6 पर है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, फिर से आगे बढ़ोगे, x प्लस प्लस, नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 7, 7 पे क्या मिलेगा, माई का m, ना तो ब्लैंक है ना फुल स्टॉप है, सो इट विल बी एडेड टू द वर्ड। तो ये देखिए वर्ड में m आपने निकाला, ऐड कर दिया। फिर आगे चलिए x प्लस प्लस 7, 7 पे क्या मिलेगा आपको, सॉरी 8, 8 पे क्या मिलेगा, y, y इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, y ना तो ब्लैंक है ना फुल स्टॉप है, वर्ड प्लस सी एच, वर्ड में ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए वर्ड की वैल्यू में m था, y भी ऐड हो गया। इसके बाद फिर आगे चलिए x प्लस प्लस 9, और बेटा देखिए जैसे ही आप 9 पे आए तो सी एच की वैल्यू फिर से क्या हो गई, कैरेट 9 में ब्लैंक आ गया। तो आपको पता ही है ब्लैंक आने का मतलब द वर्ड इज कंप्लीटेड, ओके। तो अगेन जब आप चेक करोगे सी एच इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, रॉन्ग, ठीक है। और जैसी कंडीशन रॉन्ग हुई, कंट्रोल विल गो टू द एल्स, मीन चिल्ड्रन वी आर रेडी विद द नेक्स्ट वर्ड, सो द वर्ड विल बी प्रिंटेड अलॉन्ग विद इट्स लेंथ। तो अब आपका वर्ड प्रिंट हो जाएगा माई, और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2। तो आई होप चिल्ड्रन कि अब आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे हम लोग एक एक करके अल्फ़ाबेट निकाल के वर्ड में ऐड करते जाएंगे, और जहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वर्ड आपका ओवर हो गया है,
एल्स वाले पार्ट में मूव करेंगे और वहाँ पे जाके अपने वर्ड को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब देखते हैं आखिरी वर्ड। आपने ये माई एंड टू को प्रिंट कर दिया। नाउ अगेन वर्ड इक्वल टू नल, वर्ड फिर से ब्लैंक हो गया। अब आपका वर्ड फिर से ब्लैंक है। कंट्रोल आगे बढ़ेगा x प्लस प्लस, अब कहाँ जाएगा 10 11 12 13 14। तो बेटा अब आप समझ गए होगे, एक एक करके निकालता जाएगा। 10 पे आई, ना ब्लैंक है ना फुल स्टॉप है, वर्ड में ऐड कर दीजिए। ऐसे ही 11, फिर 12, फिर 13 और फिर 14। तो बेटा एक एक करके सारे अल्फ़ाबेट निकलते जाएंगे, वर्ड में ऐड होते जाएंगे। इसके बाद बेटा फिर जब आप सबसे आखिरी बार आपका लूप चलेगा x प्लस प्लस, तो वैल्यू ऑफ x विल बिकम 15 नाउ। तो अब की बार CH में क्या आएगा, CH इक्वल टू str.caret x, कैरेट 15 पे क्या है बेटा, फुल स्टॉप। अब आइए जरा इसको जरा एक बार चेक करिए। CH इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ट्रू, सही बात है, फुल स्टॉप ब्लैंक तो नहीं है। इफ CH इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, रॉन्ग। आपकी बार आपकी बेटा सेकंड कंडीशन विल बी रॉन्ग, ठीक है, कि CH की फुल स्टॉप इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, रॉन्ग। वी नो कि दैट फुल स्टॉप इज इक्वल टू फुल स्टॉप। तो व्हेन you know that when the condition is wrong means कि control will go to the else and again it will print the word, okay, it will print the word as India and the length is 5, okay children। So in this way you will गेट योर आंसर ऑन द स्क्रीन। तो बेटा आपने ध्यान दिया, फुल स्टॉप कब मिलता है आपको, जब बिल्कुल आपके सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है ये भी ओवर हो जाता है, ठीक है, और तब आपकी सेकंड कंडीशन रॉन्ग होती है और कंट्रोल यहाँ पे चला जाता है। ओके क्लास, तो आई होप कि दैट यू गॉट द आइडिया दैट हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द individual words from a sentence, and in future children now we are going to attempt the programs which will be based upon the same logic. Okay children, and children in those logic I want to tell you that the first 5 lines will remain the same, okay, mean the loop, we will extract the character, we will check the character are blank space and full stop or not, if they are not so then we will add it to the word और फिर else। तो बेटा ये जो फर्स्ट 5 लाइन्स हैं ये अब आपके प्रोग्राम में कॉमन रहने वाली हैं, ठीक है ना। ओके, सो बेटा व्हेन वी विल मीट next time children we will attempt the next problem from the string handling. Thank you for today.